کہ اگر ہم یہ ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ کلکتہ میں ہمارے جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں، الومنائی ہیں، ان میں ممتاز الرب، محمد الیاس، شمیم، فاروق، جمیل اختر، تبریز، صوفی تبریز، اور بہت سارے لڑکے سب کا نام نہیں آ رہا ہے، نہیں لے سک رہا ہوں میں، لیکن کلکتہ کے لڑکوں کا خصوصی شکریہ کہ ہم لوگوں کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا. آپ نے بہت کوشچن جو ہے گمبھیر کیا ہے. اس کوشچن کے اندر سماج کی تباہیوں کی نشانیاں موجود ہیں. اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. ہلو دوستو، میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز. ابھی ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت سے جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، جو پٹنہ سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں ان کے کافی شاگرد لوگ رہتے ہیں. ابھی ہم آپ لوگوں کا ان سے بات کروائیں گے، وہ اپنے بارے میں بتائیں گے، قوم کے بارے میں بتائیں گے، تعلیم کے سلسلے میں جو ہے تمام باتیں بتائیں گے. میں JKV کولکتہ نیوز کی طرف آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پہلے جو ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا تعارف دیں. میرا نام علی امام ہے اور میں 1972 سے 82 تک انسان اسکول میں رہا. جس وقت میری عمر، شروعاتی عمر جو ہے 72 میں میری 24 سال کی تھی، اور وہاں ایک اسکول انسان اسکول کے نام سے سید حسن بھائی نے کھولا تھا. اور وہ سید حسن بھائی جو ہے کہ خواہش تھی کہ یہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے، تعلیمی لحاظ سے بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے، یہاں میں ایک ایسا اسکول کھولوں جس کو دھیرے دھیرے یونیورسٹی میں تبدیل کر چکوں، کیونکہ ان کا جامعہ ملیہ اور امریکہ دونوں کا انبھو تھا جس کو ملا کر وہ کام کرنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال سلسلہ انہوں نے 66 میں شروع کیا. میں اس اسکول میں بایولوجی اور ٹیچر اور کیمسٹری ٹیچر کی حیثیت سے 1972 میں پہنچا. اور وہ اسکول اس وقت بنیادی طور پر رہائشی اسکول تھا، ریسیڈنشل اسکول تھا. اور اس ریسیڈنشل اسکول میں جو ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا، وہ ماحول بے حد خاص اور مخصوص تھا. وہاں زمینیں تھیں، زمین پر جھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں، اور جھوپڑیوں میں ہاسٹل تھے جس کو کردار کاٹیج، نونہال کاٹیج، بال بھون، اس طرح کے لگ بھگ ہم کو لگتا ہے 20-25 کاٹیجز تھے، جس میں لگ بھگ 70 سے 80 یا 100 لڑکے تک ایک کاٹیج میں رہا کرتے تھے. وہاں پہنچ کر کے ٹیچر جو ہے اور اسٹوڈنٹ کا پورا کریکولم یا ٹائم ٹیبل ایک جیسا تھا. یعنی صبح سویرے فریش ہونا، ان لوگوں کو کھیل کود میں شامل کرنا، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا، پھر وہاں سے لوٹنا، کچھ ناشتہ کرنا، اور وہاں سے پھر جو ہے فریش ہو کر کے دوبارہ ناشتہ کے لیے 8 بجے یہ لوگ پہنچتے تھے. پورا کا پورا وقت ان کا 24 گھنٹہ، سونے کا وقت، کھانے کا وقت، پڑھنے کا وقت، لکھنے کا وقت، کھیل کا وقت، سارا وقت ان لوگوں کا بندھا ہوا تھا. اس پہ یہ ناچیز جو ہے بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور شامل ہوا تو ایسا شامل ہوا کہ ان میں گھل مل گیا، اور تخلیقی صلاحیت جو اس کے اندر تھوڑی بہت بھی موجود تھی، اس کو اس نے تعلیمی نشو و نما میں صرف کر دیا. اور ایکٹیویٹی بیسڈ جوائفل لرننگ کا کانسیپٹ تو بعد میں آیا، لیکن 1972 سے وہاں ساری ایکٹیویٹیز شروع ہوئی. اور یہ ساری ایکٹیویٹیز، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں سے شروع ہوا، نتھنگ سے شروع ہوا، اور اس کو ہاں میں تبدیل کیا گیا. آج وہاں سے اسکول سے میرا تعلق 30-35 اور لگ بھگ 40 سالوں کے بعد
अचानक वहाँ के तालिब उलमा ने, हिंदुस्तान में जब टीचर की क्राइसिस हुई और टीचर के मेयार और उसके कैरेक्टर की क्राइसिस शुरू है, तो उस वक्त मुझे दावतनामा भेजा कि सर आप तंदुरुस्त हैं, हयात से हैं, और हम लोग एक मीट करना चाहते हैं। जो तलबा वहाँ से निकले थे वो लोग बैठ रहे हैं कलकत्ता में, और ये आप तशरीफ़ लाते तो बहुत अच्छी बातें होती। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तलबा का हुजूम, मोहब्बत भरा नज़ारा और उनकी खामोश मोहब्बत से भरी हुई आँखें, उनके चेहरे, उसने मुझे बहुत मारूफ किया। मैं जगह जगह टीचर एजुकेशन पर बात हल्की फुल्की रखता रहा हूँ, NCERT हो या SCERT हो या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ईस्टर्न जोन का मैं मेंबर भी था, वहाँ रखता रहा हूँ। हर जगह हर जगह हिंदुस्तान में टीचर के बेस्ड, टीचर की माशी हालात काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी उनके मेहनत मशक्क़त से पढ़ाना, उनके अंदर क्वालिटी जॉयफुल लर्निंग का आना, उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा से उनका दिल का लबरेज होना, ये सारी बातें बड़ी चैलेंजिंग तौर पर हिंदुस्तानी समाज बोलता है कि अब वैसे शिक्षक, वैसे स्टूडेंट नहीं रहे जो शिक्षकों को मोहब्बत करें, और ऐसे टीचर नहीं रहे जो टीचरों को मोहब्बत करें। आज मैं वो खुशकिस्मत टीचर हूँ कि 40 साल के बाद बच्चों ने मुझे बुलाया और उनके दिल में मोहब्बत के जो चिराग जल रहे थे, उनके उस चिराग से मेरे दिल के बुझे चिराग को भी उन्होंने जला दिया। ऐसा मौका हिंदुस्तान के तालीमी तारीख़ में एक मानी ख़ेज़ मौका है। काश हिंदुस्तान के हर स्कूल के तलबा, हर स्कूल की टीचर, उससे वाबस्ता समाज के लोग अगर टीचरों को याद करें, फैसिलिटेट करें और समाज में उनके मेयार को बुलंद करें, तो हिंदुस्तान की तालीम पर कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। मामला यह है कि हम उसके अंदर ज्ञान वैसे ही भरते हैं जैसे खाली बोतल में पानी या दूध भरा जाता है। उसके अंदर धड़कते हुए दिल में और उबलते हुए दिमाग में मोहब्बतों के चिराग जलाने का काम नहीं होता है। अगर इस तरह के आयोजन, इस तरह के फंक्शन हर स्कूल के बच्चे अपने असातिज़ा के लिए करें तो वो बेहद मानी ख़ुश होगा, और इनडायरेक्ट वे में टीचर के लिए एक बड़ी बात होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आजकल के जो टीचर्स वगैरह है वो तो जहाँ तक हमको मालूम है, जहाँ तक हम देखते हैं, सब प्रोफेशनल वे से काम करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। टीचर इफेक्टिव टीचिंग ये प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग तभी हो सकता है जब उनका दिल धड़कता हो और इनके दिमाग में मोहब्बत के चिराग, मोहब्बत की रोशनी फैलाने की ख्वाहिश और तमन्ना हो। हम किसी चीज़ को मशीन की तरह से काम करेंगे तो मशीन कोई ख़ास बात नहीं है चलाना, कुंजी से ताला खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई इखलाकी मिशन मॉडल में चलाएंगे। इंसान बनाने की जो ज़रूरत है उस मोड को लेके चलेंगे, तब टीचर जो है प्रेम करने वाला होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, इखलाकमंद होगा, नेक होगा, शरीफ होगा, और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करैक्टर रखेगा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई माशी ललक नहीं होगी,
पैसा कमाने का, लेकिन मजबूर हैं आज के टीचर और आज के हालात कि ऐसे टीचर नहीं मिल रहे हैं। और इत्तेफाक से मैं बताऊं ये कि अब ट्रेनिंग फैकल्टी भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की है वो ऐसा टीचरों के अंदर मोटिवेशन, टीचरों के अंदर उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज नहीं लाने के का काम कर रहे हैं। आज एजुकेशन सिस्टम जो है ये पूरा बिजनेस पे कन्वर्ट हो गया है और बच्चों को तालीम देने के बजाय उनके गार्जियन से कितना ज़्यादा रकम ऐंठा जाए, इस बारे में स्कूल बोर्ड जो है, स्कूल की जो कमेटी है, फिर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो इस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है? असल एक जो सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत क्वेश्चन जो है गंभीर किया है। इस क्वेश्चन के अंदर समाज की तबाहियों की निशानियां मौजूद हैं। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी बात मैं बता दूं आपको कि तिजारत या कॉमर्शियलाइजेशन होना कोई ख़राब बात तो मैं नहीं मानता, लेकिन उस तिजारत और उस कॉमर्शियलिज्म के अंदर मोहब्बत का नहीं होना, इंसानियत का नहीं होना, इखलाक का नहीं होना और चाहत और तमन्ना का नहीं होना, अच्छे इंसान बनाने की तमन्ना का नहीं होना, ये ख़तरनाक है। आप लोगों का कलकत्ता में जो 2 रोज़ा सेमिनार हुआ 14 और 15 को, तो मेगा मीट में तकरीबन 205 लड़के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से और कुछ गल्फ से भी शामिल हुए और टीचरों में तकरीबन 16 टीचर ऐसे थे जिनको हम लोगों ने बुला के उनकी जो है इज़्ज़त अफजाई करी। और तकरीबन कोरोना काल की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया गया था, ज़्यादातर इसमें सीनियर तलबा थे। इंशाअल्लाह हम लोगों का एक ये भी हुआ कि अगले साल फिर एलुमनी के लिए मुमकिन है कि वो शायद पटना में उसको तय किया जाए। मुझे आया था टीचरों में उस वक्त, उसमें से 1966 के भी टीचर आए हुए थे जिससे वो स्कूल स्टार्ट हुआ था और वो भी उसकी नींव थे। और उस वक्त वो स्कूल 36 लड़कों से चला था, तो कुछ लड़के उस वक्त के भी आए थे जो एलुमनी थे, वो भी उसमें हाजिर थे। स्कूल का नाम क्या था? इंसान स्कूल, ये कहाँ पे वाक़ है? किशनगंज, बिहार। ये असल में ये सोच जो आई हम लोगों के दिमाग में, तो उसके अगर शुरुआत के जो बानी जिनको कहा जाए तो ये 4 आदमी हम लोग थे। इनमें पहला नाम है तारिक ख़याम का, फिर सैयद मुज़फ़्फ़र हसन साहब का, फिर नफीसा भाई का और मेरा। लेकिन बाद में रिज़वानुल्लाह और नसरीन ने इसको और शेप दिया, इसको और ज़्यादा तकमील तक कराने के लिए पूरा साथ दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जिन जिन लोगों ने वादा किया था वो सब आए, और साथ में हम उन तमाम अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि वो सब के सब आए। उसमें 1966 के भी थे, 1970 के भी थे, 1972 के भी थे। और दूसरी बात जो ये है कि अगर हम ये जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि कलकत्ता में हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं, उनमें मुमताज़ुर रब, मोहम्मद इलियास, शमीम, फ़ारूक, जमील अख्तर, तबरेज़, सूफ़ी तबरेज़ और बहुत सारे लड़के, सब का नाम नहीं आ रहा है, नहीं ले सक रहा हूँ मैं। लेकिन कलकत्ता के लड़कों का खुसूसी शुक्रिया कि हम लोगों के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.